Hello dear 10th. I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology for the class 10th. In this video, I am going to explain you about the environment. It is chapter 15. In this video, you can enjoy the quiz also after listening my content. Now let's begin about the environment. So what is environment? As environment means everything which surrounds us. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब environment कहलाती हैं. As it may include living and non-living components. Living means biotic and non-living means abiotic. यानी वो चीजें जो growth और development show कर रही हैं, they are called the living, and those are not showing any kind of development are called the non-living. तो बायोटिक क्या होंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक. और अबायोटिक क्या होंगे? जो भी एयर, वाटर, सॉइल, स्काई, sunlight, then everything is considered as the abiotic component. Environment affect the life and development of an organism in its natural habitat and vice versa. अब देखो जो environment है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जब तक environment नहीं होगा तब तक हम इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो वो सभी चीजें जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, they are called the biotic and abiotic factors because they are making our environment. You can see if we are having a earth crust, hard crust with the facility of the water, air, trees, sunlight, then only we can survive well on this earth. Now environment is also called the ecosystem. So what is ecosystem? As ecosystem means all the interacting living organisms in an area together with non-living components form an ecosystem. तो environment को जानने से पहले हमें ecosystem के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारे इस धरती पर एक चीज दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड करती है. As the living organisms are totally depend on the non-living components. ठीक है? So that is making a system. So उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं. इसलिए ये इकोसिस्टम क्या कहलाएगा? एनवायरनमेंट कहलाएगा. अब इसमें क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, दे आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स. इसके अलावा अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड और सॉइल, दे आर कॉल्ड द अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इकोसिस्टम कहते हैं. और एनवायरनमेंट को भी हम क्या कह सकते हैं? दैट एनवायरनमेंट इज अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम which is working in a connection. As you can see here, just if you have the good quantity of water, air, plants and the good kind of atmosphere, then only you can survive well on the earth. लेकिन यदि आपके पास पानी नहीं है, अच्छी हवा नहीं है, so then lands will be barren, it will be unfertile and then you will not able to survive well on this earth. Okay? Now let's see more about the biotic components. As biotic components are living factors that affect the environment, they include the grazing animals, insects, lichens, humans and parasites. चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं. As biotic factors include प्रोड्यूसर्स, क्योंकि बायोटिक क्या है? बायो मीन्स लिविंग कंडीशंस. तो लिविंग कंडीशन सबसे पहले हमें कौन दे रहे हैं? प्लांट्स. क्योंकि जितनी भी अबायोटिक कंडीशंस हैं उनसे इस धरती पर सबसे पहले प्लांट्स बनेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. और नेक्स्ट क्या हो गए? कंज्यूमर्स, यानी कि जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं. प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए जो इस धरती पर हैं, यानी कि वी आर द पीपल, एनिमल्स. That's why only we are able to survive on this earth. So let's write about the producers which can make their own food such as plants, blue-green algae, etc. So this is the complete definition for the producers. And how will you write about the consumers? As consumers feed on producers, यानी कि जितने भी plants हैं या plants को खाने वाले छोटे जीव हैं, so they are making the definition of consumers. जैसे कि हर्बीवोर्स, यदि वो केवल प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो हर्बीवोर्स कहलाएंगे.
As here you can see the few examples of biotic factors: plants, animals, fungi like mushrooms, protists like paramecium, amoeba, euglena, and the bacteria. They all are showing the growth and development. So that's why they are considered as a biotic factor. अब abiotic components क्या होते हैं? Just let's differentiate. As they are non-living factors that affect the environment. So it's a very complete definition of the abiotic components. You have to write, you have to learn. As what does they include? They include climatic factors. बार बार मैं आपको बता रही हूँ, wind, water, light and temperature. तो ये क्या कहलाएंगे in one word? Climatic factors. तो don't be panic. आपसे abiotic components में climatic factors पूछे जाएं तो only wind, water, light and temperature you have to tell. फिजियोग्राफिक फैक्टर्स लाइक हाइट, स्लोप, क्योंकि कहीं पर हमारी पहाड़ी इलाका है, कहीं पर हमारी बहुत निचले इलाके हैं, घाटी जिनको बोलते हैं. तो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स और ऑल्सो हैविंग द डिफरेंट कंडीशन ऑफ विंड, वाटर एंड द सॉइल, तो उनको हम बोलते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. नेक्स्ट होते हैं एडाफिक फैक्टर्स, जैसे कि मिनरल्स, सॉइल, टेक्सचर, पीएच ऑफ द सॉइल एटसेट्रा. ठीक है. Now let's see the difference between biotic factors and abiotic factors. Very easily you can learn now. Fungi, plants, protists, animals, archaea. Archaea are called the ancient bacteria. ठीक है, जो present bacteria हैं, तो ये सब living हैं. They are showing the life. They are showing the development and the growth. So that's why they are called the biotic factors. They are abiotic factors because they are present on the earth. Because of the earth, they can maintain their level. They cannot grow and they cannot be developed. Air, salinity, soil, temperature, light, water, minerals, pH, and humidity. So this can be vary according to the environment. So they are called the abiotic factors. Those are non-living. So biotic are living, abiotic are non-living. Here you can see more. As biotic are the living, plants, animals, fungi, bacteria, they all are called the living organisms. Abiotic are the non-living, that means water, sunlight, soil, air, temperature. I hope कि अब आपको बहुत अच्छे से ये याद हो गया होगा. Now let's know about the biodegradable. Biodegradable कौन से सब्सटेंस होते हैं? देखो, bio means हो गया living, degradable means has the ability to reduce. तो जो भी reduce हो जाए वो biodegradable कहलाते हैं. जैसे definitions लिखिए आप यहाँ से. Substances that can be decomposed by the action of microorganisms like bacteria are called biodegradable. जितना भी organic waste है, organic waste means the peels of the vegetables, fruits, paper, everything is biodegradable. ठीक है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन वर्ड लग गया है. वो क्या कहलाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग? Substances which cannot be decomposed by the action of microorganisms are called non-biodegradable. ठीक है. So that's why bacteria are helping a lot for the earth because they can decompose the waste material of the earth. Clear? चलिए इनके बारे में आगे देख लेते हैं. अब देखो, जितने भी फ्रूट्स हैं, हेयर्स हैं, पेपर्स हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स हैं, हार्डवेयर, बॉटल्स, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू योर daily routine, you can know that those are the things biodegradable and non-biodegradable, and you can choose and you can make a list of such kind of material. अब इनके एग्जाम्पल और देखते हैं. बायोडिग्रेडेबल के क्या एग्जाम्पल्स हैं? कैटल डंग, कॉटन. कैटल डंग क्या है? गोबर. कॉटन क्या है? कॉटन मीन्स होता है रुई. रुई या कॉटन से बने हुए कपड़े, जूट जिनसे रस्सी बनती है. पेपर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट.
और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एज प्लास्टिक्स, पॉलिथीन बैग्स, synthetic fibers, metals, radioactive waste. So they all are the example of non-biodegradable waste. Now here I am going to introduce with few symbols, as it is a symbol of recyclable, it is a symbol of biodegradable, and it is a symbol of compostable. ठीक है? So just you should learn about these symbols also. Here are 3 different kind of dustbins. आपको बहुत बार बताया गया है. तो यदि येलो कलर में है और भी अलग कलर है, रेड कलर है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स के लिए होता है. तो यू शुड चूज कि आपको कौन सा डस्टबिन किसके लिए यूज करना है. रिसाइक्लेबल कोई मटेरियल है दैट यू कैन थ्रो इन दिस डस्टबिन. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो यू कैन थ्रो इन द ग्रीन वन. ओके. नाउ लेट्स सी द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. जैसा कि आप इस चैप्टर में शुरू से पढ़ रहे हो कि हमने जो भी चीज शुरू की वो फूड से शुरू करी. प्लांट्स ने पहले अपने लिए भोजन बनाया, तब वो प्रोड्यूसर्स बने. कंज्यूमर्स ने उनको खाया, तब उनमें ग्रोथ हुई. तो यानी कि इस धरती पर कुछ भी चीज डिसाइड हो रही है तो वो हमारे खाने और पीने से ही डिसाइड होती. So according to it, we can divide organisms into the first category, that is producers. Producers means all kind of plants. Next are the consumers, यानी जो उन plants को खा रहे हैं या उन plants को खाने वाले और जीवों को खा रहे हैं, वो consumers कहलाते हैं. Next होते हैं decomposers, चाहे वो producers हैं या consumers हैं. After the dead condition, they have to be decomposed on this earth. Now let's see more about the producers. So, what are producers? As all green plants, blue-green algae can produce their food from inorganic substance using light energy by the process of photosynthesis. So, what is inorganic substance? Inorganic substance is carbon dioxide and water. तो देखो बच्चों, इस inorganic food से plants एक फूड बना रहे हैं जिसमें शुगर भी होगा और स्टार्च भी होगा. और यही शुगर और स्टार्च हमें लाइफ देता है क्योंकि हम इन्हीं चीजों को खाते हैं और इनसे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. तो इट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन फॉर द प्रोड्यूसर्स. यू हैव टू कॉपी कंटिन्यूअसली माय नोट्स, देन यू विल गेट अ कंप्लीट नोट. So as you can see, all the plants, they are providing us different kind of food material. So we are able to survive on this earth because of these green plants. Always we should try to save the eatables. हमें ऐसे ही unnecessarily कहीं पर भी चीजों को फेंकना नहीं चाहिए. जितना हमें खाना है उतना ही हमें यूटिलाइज करना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं हमारे कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कौन होते हैं? As consumers include organisms which depend on the producers either directly or indirectly for their sustenance. तो यानी कि consumers कौन हो गए? जो plants पर या plants को consume करने वाले conditions पर directly dependent है या indirectly है, वो सब consumers कहलाएंगे. तो consumers depend on others for food. तो consumers वो हैं जो food के लिए दूसरे के ऊपर depend करते हैं. ठीक है. तो ये आपको याद करना है और लिखना भी है. As consumers are of 3 types. कौन कौन से होते हैं? First is the primary consumer. Primary consumers are called the herbivores, क्योंकि ये केवल और केवल plants खा रहे हैं, यानी ये vegetarian होते हैं. दूसरे होते हैं secondary consumers. Secondary consumers होते हैं carnivores, जो केवल flesh खाते हैं, यानी herbivores को खाने वाला जो animal है उसको कोई भी बड़ा जीव खाएगा वो carnivore कहलाएगा. ठीक. नेक्स्ट हो गया आपका टर्शरी कंज्यूमर. टर्शरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को दोनों को ही खा सकते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्लांट्स को भी खाते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं और हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनको भी खा सकते हैं. वो कहलाते हैं ओमनीवोर्स. एज कंज्यूमर्स
में हर्बीवोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स. सो दिस इज अ लिटिल एंड वेरी कंप्लीट डेफिनेशन. Carnivores are flesh eating animals. Omnivores consume both plants and animals. बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हो. Parasites live inside and depend upon living hosts. Parasites क्या होते हैं? जो किसी भी बड़े जीव के ऊपर रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते नहीं है. वो जो भी जीव दूसरा जीव खाता है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे कि जूं होती है आपके सिर में, तो वो खुद तो खाना नहीं बनाती है, लेकिन वो किससे सरवाइव करती है? आपके ब्लड से. जो आपका ब्लड है वो उसको लगातार सक करती है एंड देन इट कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ. सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी सड़ी गली चीजों पर सरवाइव करते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं. इसीलिए हमारी धरती पर लगातार क्लीनिंग होती रहती है, क्योंकि कोई भी चीज यदि गल जाती है या पुरानी हो जाती है तो वो उसको सैप्रोफाइट्स खाकर खत्म कर देते हैं. सो दिस इज द रोल ऑफ कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स. तो कंज्यूमर वो भी हो गए जो प्लांट्स खा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा डक है, इसको खाने के लिए कोई भी कार्निवोर होगा तो वो उसको खा सकता है. और इस तरह से एक फूड चेन में कंज्यूमर्स काम करते हैं. किस तरह की चेन बन सकती है? जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. इसको खाने वाला एक हर्बीवोर है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया. इसे भी खाने वाला एक और कार्निवोर है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है. इसको भी खाने वाला एक टॉप कंज्यूमर हो गया, इसको हम टॉप कार्निवोर्स भी कहेंगे क्योंकि इसको कोई नहीं खा पाएगा. ठीक है, तो इस तरह से एक फूड चेन फॉर्म हो जाती है एनवायरमेंट. लेकिन कंज्यूमर्स का काम क्या है? दे कैन डिकम्पोज ऑल्सो. अब ये भी डेड होगा, ये भी डेड होगा, ये भी डेड होगा, ये भी डेड होगा, एंड देन इट कैन बी डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर्स और द सैप्रोफाइट्स. ओके, चलिए अब डिकम्पोजर्स के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं. फंजाई एंड बैक्टीरियाज विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट. ठीक है, फंजाई और बैक्टीरियाज वो हैं जो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं. तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपलर वन. अब जो भी डेड प्लांट है या एनिमल है उसका जितना भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स करते हैं. तो डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? Thus decomposers help in the replenishment. Replenishment होता है about the cleaning of the environment. वो हमारी धरती के ऊपर सफाई करने का काम भी करते हैं, हमारी धरती को नया बनाने का काम भी करते हैं. ठीक है. So decomposers consume dead plants, animals and decomposes them, reduces to simpler forms of matter. So they are called the primary consumers. Fungi है and the bacteria है. So what are they doing? They are decomposing all the dead and harmful material from the earth. जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको दिखाए हैं. रॉक बीटल, फ्लैटवॉर्म, आंट, सेंटीपीड, स्यूडोस्कॉर्पियन माइट, ग्राउंड बीटल, माइट, स्प्रिंगटेल, बीटल, प्रोटोजोआ, फ्लाई लार्वी, मिलीपीड, शोबग, माइट, अर्थवॉर्म, स्लग, स्नेल, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, ऑर्गेनिक डेब्रीज. ठीक है, तो दे ऑल आर लिविंग ऑन दिस मटेरियल. तो इसको डिकम्पोज करने के लिए इतने सारे तरह की डिकम्पोजर्स हमारी धरती पर प्रेजेंट हैं. That's why we are able to survive on the earth. Now let's see the types of ecosystem. So there are two types of ecosystem. One is the natural ecosystem, another one is the artificial ecosystem. तो natural ecosystem क्या है? जो नेचर ने ऑटोमेटिकली बनाया है और जिसकी वजह से आज तक हम सर्वाइव कर रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे कंडीशंस थोड़ी वर्स्ट होती चली गई और हमारे लिए नेचुरल कंडीशंस खत्म होती चली गई, देन वी थिंक अबाउट द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. तो चलो इनके बारे में जानते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नेचर ने बनाया है, ये भी नेचर ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमने इन्हीं को सेव करने के लिए आर्टिफिशियली फॉर्म किया है. चलिए इसको हम और देखते हैं. So what is natural ecosystem?
द इकोसिस्टम प्रेजेंट नेचुरली इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचर की तरफ से ही हमें गिफ्ट मिला है दैट इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि वी कैन टेक द लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट्स हो गए, लेक्स होती हैं झीलें, इसके अलावा ग्रासलैंड्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, एस्टरीज, ponds, sea. So these are the gifts of nature to us. So these all are called the natural ecosystem. यहाँ से लिखिए और इनके नाम याद कीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि grassland is a natural or the artificial. Is a desert natural or artificial? Write 2 names of natural ecosystem or 4 names of natural ecosystem. So you have to copy. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक दिख तो आर्टिफिशियल रहा है बट ऑटोमेटिकली ये हमारी धरती पर प्रेजेंट होती हैं कंडीशंस। जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स को जो भी हर्बीवोर्स हैं वो खा लेंगे। हर्बीवोर्स यानी जो प्लांट खाने वाले हैं। कार्निवोर्स कैन बी ईट द स्मॉल फिशेस, है ना, जो हर्बीवोर्स फिशेस हैं उनको कार्निवोर्स खा सकती है। जो बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती हैं। कुछ बहुत बड़ी मछलियां जिनको कोई भी नहीं खा सकता है, या ह्यूमन बींग्स हो गए उनको कोई नहीं खा सकता है, तो वो टॉप प्रीडेटर्स कहलाते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल क्या है? द इकोसिस्टम विच इज मैन मेड इज नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब जो हमने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम फॉर्म किए हैं, जैसे कि सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, जूज हो गए, एक्वेरियम्स हो गए, बहुत सारे हमने कंजर्व करने के लिए, एक्सटिंक्ट ब्रीड्स को बचाने के लिए हमने बहुत सारी चीजें इस धरती पर फॉर्म की हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एज द गार्डन्स, एज द एक्वेरियम्स। तो डिफरेंट काइंड ऑफ गार्डन्स, चाहे वो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, और भी हैं, बहुत सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं। और एक्वेरियम्स कैन बी काउंट एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। Now next see about the agro ecosystem. What is agro? Agro word used for the largest man-made ecosystem. ठीक है, जो हमने सबसे बड़े इकोसिस्टम्स बनाए हैं वो कहलाते हैं एग्रो इकोसिस्टम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको ग्रीन हाउसेज में हमने रखा है, क्योंकि ये इस तरह की ब्रीड है जिन्हें हमें प्रोटेक्ट भी करना है, और जहाँ जो सीजन की नहीं होती है उनको दूसरे सीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम ग्रीन हाउसेज में कुछ प्लांट्स को रखते हैं। अब जैसे कि एक आर्टिफिशियल हो गया, यहाँ पर हमने वेजिटेशन क्रिएट किया हुआ है, तो बहुत सारे हमने प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, और प्लांट्स की ब्रीड्स यहाँ पर हमने सेव कर रखी हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो भी कुछ हमने अभी पढ़ा है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडाफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक में रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड आते हैं। एडाफिक फैक्टर्स क्या है? जो भी आपके आसपास की सराउंडिंग्स हैं, सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी, है ना। और बायोटिक फैक्टर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉप्स। Consumers are primary, secondary, tertiary, quaternary, heterotrophs. ठीक है। Decomposers are bacteria, fungi and saprotrophs. So this was about the components of an ecosystem. I hope कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप जरा जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी करेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज ओनली दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स with the help of solar energy in the presence of photosynthesis. This food is not only used by green plants but also all other organisms
कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अब जितना भी ग्रीन प्लांट्स जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं उसकी वजह से वो फूड फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, और ये फूड किसके लिए यूज होता है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं। तो आपको ये कंप्लीट आंसर लिखना होता है, तो बिल्कुल आप कॉपी करेंगे और इसको याद कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इज use of paper is more environment friendly than the use of polythene for packaging justified। ठीक है, आंसर क्या है इसका? देखो, पेपर बैग्स आर बायोडिग्रेडेबल while polythene is नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम क्यों यूज करते हैं पेपर को? क्योंकि पेपर प्लांट से ही बना हुआ है और इजीली वो बायोडिग्रेड हो जाता है, और वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। So why are we using the paper? क्योंकि पेपर जो है वो आसानी से डिग्रेड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, because it is a product of plants. So that's why paper bags are biodegradable while polythene is non-biodegradable. Next देखते हैं, state one advantages of using disposable paper cups over disposable plastic cups। ठीक है, क्यों हम ऐसा करते हैं? As disposable paper cups are biodegradable while disposable plastic cups are non-biodegradable. That's why I suggest you कि आपके environment में जो भी चीजें हैं उनको आपको एक लिस्ट फॉर्म में लिख लेना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की कंडीशंस वाला क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। See the next one question. Why are plastics non-biodegradable substances? अब यहाँ पर आपको इसका रीजन लिखना है। So plastics are non-biodegradable substances as they cannot be broken down by decomposers. Their waste pile up in surroundings. तो सीधी सी बात है, आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन बताई है। जो भी चीज डिकम्पोज नहीं हो सकती है, बैक्टीरियाज के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो सकती है, वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कहलाती है। Now it's a time for quiz. Now you have to check what have you learned. So be ready for the quiz time. So first question is, which of the following is a biodegradable substance? Glass, plants, plastics or polythene? Check your answer. Yes, of course plants। अब बहुत अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि plants biodegradable हैं। It can decompose easily by the bacteria. Glass, plastics and polythene cannot be decomposed, so they are non-biodegradable. Next is, which of the following is a non-biodegradable substance? Virgin plastic, plants, plant producers. Yes, plastic. Plastic is non-biodegradable substances. Here you can ask about the virgin plastic. It is a new kind of plastic जो डिग्रेड हो सकती है और ये बायोलॉजिकल मटेरियल से ही बनाई गई है। इसके अलावा प्लांट्स हैं, प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, इजीली दे कैन डिकम्पोज एंड दे आर द एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल। ओनली प्लास्टिक इज द एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The constituents which do not form ecosystem are। ठीक है, biotic constituents, plastic bags, abiotic constituents, all of these। Check your answer. प्लास्टिक बैग्स, नेचुरल सी बात है कि प्लास्टिक बैग्स हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, so they are not helping to make our ecosystem। Biotic and abiotic components are helping together to make the ecosystem. Next is, the functional unit of environment is ecosystem, nitrogen, carbon, oxygen। सीधा आंसर इकोसिस्टम। तो फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम है। देखो, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट
but they are the single or individual units. But ecosystem is the complete unit for the environment, which is informing about the biotic conditions and the abiotic condition. इसलिए ये क्या कहलाती है? फंक्शनल यूनिट कहलाती है. आपका हर एक एमसीक्यू एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने दिया है, इसलिए आप इनको कॉपी जरूर करें. केवल आंसर के साथ में आप कॉपी कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स? प्लास्टिक पेन्स, प्लास्टिक कैंस, पॉलिथीन और ग्रीन प्लांट्स. चेक योर आंसर. ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स वही हैं जो प्रोड्यूस हो सकते हैं इस धरती पर, तो ये केवल प्रोड्यूस हो सकते हैं, जबकि प्लांट्स, प्लास्टिक पेन्स, कैंस, ये पॉलिथीन, ये हमें बनानी पड़ेगी. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग देमसेल्फ. Next is, which of the following is not an example of abiotic factors? Light, plants, heat, temperature. बहुत इजी होगा अब आपके लिए, क्योंकि आपको ये याद भी रखना है. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं. चेक योर आंसर. यस, प्लांट्स, क्योंकि इसके अलावा लाइट, हीट, टेम्परेचर मैंने आपको बताया है, यही अबायोटिक कंडीशंस है, और प्लांट्स आर द बायोटिक फैक्टर. नेक्स्ट, What is not a biodegradable pollutant? अब आपको इनमें से बताना है जो biodegradable pollutant नहीं है. Is it paper, cotton cloth, cotton और DDT? Check your answer. DDT. तो पॉल्यूटेंट, पेपर बहुत सारा पड़ा होगा, कॉटन कपड़े पड़े होंगे, तो वो भी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये भी गंदगी को बढ़ा सकते हैं. But still they can decompose. लेकिन DDT क्या है? DDT is a formation of chemical. It cannot be reduced from the earth easily. So DDT is not a biodegradable pollutant. Dash is an omnivore animal. अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा omnivore animal है. Lion, hawk, jackal और man. Check your answer. Yes, man, क्योंकि lion, hawk, jackal, they all are the carnivores. ये प्लांट्स नहीं खाते हैं, लेकिन मैन क्या है? मैन प्लांट्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है, इसलिए ये किस कंडीशन में आते हैं? omnivore एनिमल में आते हैं. It was about the MCQs. In my next video, I will start about the food chain and food web. It is very important topic for the class 10th because always you get the questions from food chain and food web. So I hope that you will be with me in my next video. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.